Hey guys, very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for lecture number 3 of our unit number 4 of partnership, retirement of a partner. Guys, our partnership series timing is 11:30 am to 12:30 pm, जहां पर दोस्तों सैटरडे तक हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लेंगे, एंड पोस्ट दिवाली वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर रिमेनिंग 2 units, that is death of a partner and change in profit sharing ratio. Friends, our RTP MTP batch have already commenced from 17th of October, and guys, already 2 दिन हो चुके हैं, and today is the day when I will start my RTP MTP बैच एट 3:30 PM। तो दोस्तों आज मेरा पहला सेशन होगा 3:30 PM पर, जहां पे मैं लेने वाला हूं RTP ऑफ December 22 attempt। Friends, we are also starting our midnight revision series from 27th October only on Unacademy Plus। Friends, the features of this series is 27th October से शुरू होगा ये रिवीजन सीरीज, 30 नवंबर तक चलेगा दोस्तों, एंड दिस विल बी एक्सक्लूसिवली ऑन Unacademy Plus। Yes, it will have around 20 sessions of 2 hours each and 3 one-shot marathons on small topics. Questions from study material PYP, RTP and MTP will be covered in this particular revision series. The timing will be 10 PM to 12 AM in the night. And friends, notes will also be provided which will cover the most important questions of that particular topic, which is going to be very useful for you for last day revision. And yes, 60 plus marks आप score कर सकते हो on the basis of midnight revision series and mini marathons that I will be conducting after मिडनाइट रिवीजन सीरीज फ्रॉम 1 फ्रेंड्स, टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे, तो जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो वी आर कवरिंग एनपीओ, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, इश्यू, रीइश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अकाउंट करंट, बिल ऑफ एक्सचेंज, पार्टनरशिप अकाउंट, सोगरा एंड ट्रू और false. Friends, you can also buy your subscription to attend RTP MTP batch midnight revision series and also 900 MCQ batch of maths and economics. You can also buy 2 month subscription at just around 8,100. You just have to apply my code, which is DKJ10. You can also go for our iconic subscription जहाँ आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, evaluated test series and discussion channel. You can also go for our test series product, which is one of the most cost effective test series product in entire India. For 3 months, you need to pay only 1350 after applying my code DKJ10. But I always suggest my students to go for the combo subscription, because a combo subscription gives you 4 subjects of foundation and 8 subjects of CA inter. And guys, this subscription is going to be for 24 months at just around 45,000. So guys, it is going to be very cost effective for you. Yes, my code DKJ10. This is our awesome result of June 22, and this is how our students score in accounts. More than 13 students score 90 plus marks in account. Guys, expecting the same from you. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. And yes, this is a channel, this is the Telegram channel where entire educators, all the educators of Bahubali team provides their notes, links and updates relating to their session. So do subscribe. More than 27,000 students have already subscribed to this particular Telegram channel. And yes, do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. दोस्तों, ऑन मंडे वी स्टार्टेड अवर टॉपिक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और लगभग हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए थे एंड वी वर ऑन टू फुल फ्लेज क्वेश्चंस। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, 2 हो गया था, 3 हो गया था, 4th डन, 5th इज डन, 6th इज ऑल्सो डन, 7th इज ऑल्सो डन, 8th नहीं लिया है, 9th नहीं लिया है, 10th बाकी है। मुझे बताना कौन कौन सा होमवर्क हमने, कौन सा होमवर्क मैंने दिया है। टेल मी कौन कौन से क्वेश्चंस मैंने एज अ होमवर्क दिए हैं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। नील, खुशी, भूमि, महक, एकनाथ, श्रेया, राजेश, अंशिका, सिमरनजीत, शशांक, महावीर, यस, शीतल, टेलर, श्रेया, विद्यार्थी, वारे विद्यार्थी, मेरा फोटो लगा के बैठा है विद्यार्थी, रचित, यस, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। 12th एंड 13, ओके। तो पहले 12th और 13 चेक कर लेते हैं, और फिर आज के लिए हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग निपटा लेंगे आज, ठीक है। कोशिश करेंगे 9 और 10 खत्म कर दे, और 12th और 13 मैंने एज अ होमवर्क दिया था, वो चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ूंगा सबसे पहले, फिर उसके बाद आप लोगों के आंसर्स चेक करूंगा।
तो क्वेश्चन नंबर 12 था गाइस, आरव, नीरव एंड पूरव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2020 was as follows. Capital Arav, Nirav, Purav, general reserve, trade creditors, building machinery, debtors, stock, bank. Purav retired from business on 1st April 2020. Goodwill was to be valued at 2 years purchase of average profit of past 3 years 31st March 18, 19 and 20. तो क्या करना है गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट. ठीक है. Goodwill was not to be raised in the books of account. That means gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. Provision for doubtful debt is to be created on debtors at 5%. Machinery is to be depreciated by 10% and stock is to be revalued at rupees 71,000. Building is to be appreciated by 20%. Okay. Arav and Nirav to bring in additional capital of 35,000 and 25,000 respectively. Balance payable to Purav must be paid immediately. ठीक है. पूरव को जो भी पैसा देना है, रिटायरिंग पार्टनर है पूरव, उसको दे दिया जाएगा. आपको बनाने के लिए कहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट. तो दोस्तों सबसे पहले बताना, पोस्ट योर कमेंट्स एवरीवन. रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट या लॉस, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. प्लीज पोस्ट योर कमेंट क्विकली. ओहो, टाइप करके रखा था आपने. भूमि लॉस है भाई. चेक करते हैं. हियर इज द आंसर एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 12. तो ये रहा लॉस. लॉस वाज 9,000 रुपीज. 4,500 ए आरव, नीरव 3,000 एंड पूरव 1,500. करेक्ट 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 करेक्ट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरव को पे कर देंगे 59,500. आरव और नीरव का होगा 1,30,900 एंड 85,600. खुशी वेरी गुड. खुशी वेरी गुड. सो दिस इज द आंसर गाइस. रिवैल्यूएशन का लॉस 9,000 रुपया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं. बैंक बैलेंस 13,000 बचेगा और बैलेंस शीट का टैलीड अमाउंट होगा 2,66,500. बैलेंस शीट टैलीज एट 2,66,500. ग्रेट. सुपर्ब गाइस. सुपर्ब एवरीवन. कितने लोगों का राइट आया जरा बताना प्लीज. गुडविल का वैल्यू था 96,000. रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 1/6. जर्नल एंट्री होगी आरव डेबिट, नीरव डेबिट टू पूरव क्रेडिट. चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. एनी मोर डाउट्स? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? जिसे नहीं किया एक बार रिव्यू कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे. जिस किसी ने भी नहीं किया होगा प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू चेक योर आंसर आफ्टर डूइंग इट. आगे बढ़े गाइस. शैल आई प्रोसीड अहेड? शैल आई प्रोसीड अहेड गाइस? चलो ग्रेट. Come to question number 13. Satyam, Shivan and Sundaram are partners of Mrs. Great Stationer sharing profits and losses in the ratio of 1:1:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as under. Capital Satyam, Shivan, Sundaram. General reserve, loan from Satyam, sundry creditors, building, plant, investment, stock, trade receivable, bank. On 1st April 2020, Shivam retired on the following terms. Goodwill is to be valued at 1,20,000, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. That means magical entry. Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. Building is to be appreciated by 20% and plant is to be depreciated by 10%. Investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan.
Provision of 5% is to be made on trade receivables to cover the doubtful debts. In the reconstituted form, the total capital will be 3 lakh, which will be contributed by Satyam and Sundaram in their new profit sharing ratio, which is 2:3. The amount due to retiring partner shall be transferred to his loan account. You are required to give journal entries to record about these adjustments and also prepare the balance sheet thereafter. ठीक है, इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है, मतलब फास्ट कराऊंगा, लेकिन एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग चेक करेंगे। तो जिस किसी ने भी किया है, प्लीज चेक योर आंसर्स एवरीवन, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बहुत फास्ट करवाऊंगा इसको, ठीक है, बहुत फास्ट करवाऊंगा, प्लीज चेक। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,95,000, 1,48,000 एंड 1,12,000। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व क्या करेंगे, जनरल रिजर्व बांट देंगे। क्या रेशियो है, 1:1:2। एक हिस्से के लिए कितना आएगा दोस्तों, 20,000 रुपया एक हिस्से के लिए आएगा। तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू सत्यम, 20,000 टू शिवम, 20,000 टू सुंदरम, 20,000 being reserve transfer to partners capital account, ठीक है। इसका लेजर पोस्टिंग भी कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व 20, 20, 40। नेक्स्ट लोन फ्रॉम सत्यम, कोई एडजस्टमेंट है क्या, जी हाँ बिल्कुल है। बोल रहे हैं कि लोन जो होगा इन्वेस्टमेंट लेकर चला जाएगा सत्यम, ठीक है। तो दोस्तों कितने का इन्वेस्टमेंट था, 85,000। लोन कितने का जा रहा है, 94,000। मतलब 94,000 पे करने की जगह हम सिर्फ उसको 85,000 का इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, मतलब हम लोग कम पैसा दे रहे हैं, 9,000 का फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट भी गायब हो गया, लोन भी गायब हो गया। आई रिपीट, इन्वेस्टमेंट भी गायब, लोन भी गायब और 9,000 का फायदा हुआ। एंट्री विल बी गाइस, लोन फ्रॉम सत्यम अकाउंट डेबिट 94,000 टू इन्वेस्टमेंट 85,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, it will be loan from Satyam account debit to investments 85,000 to revaluation 9,000। लोन फ्रॉम सत्यम बैलेंस शीट से हट जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बैलेंस शीट से हट जाएगा। एंड फ्रेंड्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट्स 9,000। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट, नो एनी एडजस्टमेंट, वैसे की वैसे लिख देंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 75,000, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद बिल्डिंग 2,50,000, व्हाट इज द एडजस्टमेंट, 20% का एप्रिसिएशन। 2,50,000 का 20% दोस्तों 50,000 होगा, एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000। लेजर पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बिल्डिंग 50,000। एंड फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बैलेंस शीट के एसेट साइड में बिल्डिंग 3 लाख। आई होप यहां तक सभी लोगों का करेक्ट आया होगा। नेक्स्ट प्लांट 1,60,000। जयेश बेटा लेक्चर में ध्यान देना यार, आई नो आई एम ओपी, प्लीज बार बार कहो मत यार गाइस, आई नो आई एम ओपी। ओके फाइन, तो प्लांट 1,60,000, ठीक है, 1,60,000 10% का डेप्रिसिएशन लगा देना है। व्हाट विल बी द एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट 16,000 लिख देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट अकाउंट 16,000। and guys second effect will be in the balance sheet on the asset side plant and machinery, ठीक है। 1,60,000 थे 16,000, it will be 1,44,000, ठीक है ना, ठीक है।
ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी डन। फिर उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक का क्या होगा 45 to 80। तो स्टॉक का क्या करना है भाई, स्टॉक 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 स्टॉक, नथिंग इज टू बी डन फॉर स्टॉक, वैसे की वैसे लिख देंगे 45,000 to 80। स्टॉक 45,000 to 80। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 68,000। व्हाट इज द एडजस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल पे 5% का प्रोविजन लगाना है। 5% का प्रोविजन लगाना है। 68,000 इंटू 5%, 3,400 एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और यू कैन ऑल्सो राइट आरडीडी, नो इश्यूज एवरीवन। 3,400। ठीक है, लेजर पोस्टिंग विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 RDD 3,400, एंड गाइस बैलेंस शीट के असेट साइड में इट विल बी ट्रेड रिसीवेबल 68,000 लेस RDD 3,400 64,600। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ होमवर्क। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस, इसलिए फास्ट हो रहा है, फास्ट करवा रहा हूं, चेक करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट बैंक 95,720। वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बैंक अकाउंट, लिख देंगे दोस्तों बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 95,720। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑन 1 April 2020 Shivam retired on the following terms: goodwill is to be valued at 1,20,000, but the same will not appear as an asset in the books of the reconstituted firm. So friends, न्यू रेशियो क्या है, 2:3। कौन जा रहा है भाई, शिवम जा रहा है। तो पुराना रेशियो क्या था, 1/4 और 2/4। ठीक है, और न्यू रेशियो क्या है, 2/5 और 3/5। 2:3 का नया रेशियो है। तो दोस्तों व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो एवरीवन, व्हाट विल बी द गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चेक एवरीवन। तो सत्यम is gaining 3/20, Shivam is sacrificing 5/20, and Sundaram is also gaining 2/20। सो फ्रेंड्स, एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट। कौन कौन गेनिंग है, सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट 3/20 18,000, सुंदरम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/20 मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल 12,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर Shivam's capital account 30,000 being goodwill adjusted। क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग कर देंगे इसकी। What will be the ledger posting to Shivam's capital, 12,000 सुंदरम के कॉलम में एंड सत्यम के कॉलम में 18,000। एंड फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, बाय सत्यम एंड सुंदरम अकाउंट शिवम के कॉलम में 30,000 किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। कौन बियर करेगा, गेनिंग पार्टनर। गुडविल का एडजस्टमेंट डन। Building is to be appreciated by 20% done. Plant is to be depreciated by 10% done. Investments are to be taken over by Satyam in full settlement of his loan done. Provision of 5% is to be made on trade receivables to cover the doubtful debts done. In the reconstituted firm, the total capital will be 3 lakh, which will be contributed by Satyam and Sundaram in their new PSR, which is 2:3। इनका जो क्लोजिंग कैपिटल होगा इन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2। तो दोस्तों सत्यम का कैपिटल होगा 1,20,000 और सुंदरम का होगा 1,80,000। लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस कैरी डाउन, सत्यम 1,20,000, सुंदरम 1,80,000। दोस्तों साथ ही साथ इसको बैलेंस शीट में भी हम लोग लिख देंगे कि भाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अमाउंट हमें ऑलरेडी मिल चुका है, सत्यम 1,20,000, सुंदरम 1,80,000, आउटर कॉलम 3 लाख। ठीक है, द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर शैल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ठीक है, कर देंगे।
ना एंटायर क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस हम लोग निकालेंगे। सो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या होगा गाइस? सो फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड बड़ा है, 59,000 का टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड 59,000, डेबिट साइड लिख दूंगा 59,000। तो 59,000 माइनस 16,000 माइनस 3,400, इट विल बी 39,600। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा 39,600? 1:1:2। तो 39,600 डिवाइडेड बाय 4 × 1। ठीक है। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू सत्यम 9,900, शिवम 9,900 और सुंदरम 19,800, टोटल 39,600। इसका भी जर्नल एंट्री हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सत्यम शिवम सुंदरम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 39,600 टू सत्यम अकाउंट 9,900 टू शिवम कैपिटल 9,900 एंड टू सुंदरम कैपिटल 19,800 19,800। ठीक है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, इसका भी लेजर पोस्टिंग कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट सत्यम शिवम सुंदरम। अब क्या किया जाए? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट ले लेंगे और उसको पे कर देंगे। ठीक है। तो शिवम का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 1,48,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 9,900, 2,07,900। क्या करेंगे? क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया है कि हमें उसको पे कर देना है। नो 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 नो, उसके लोन अकाउंट में डालने के लिए कहा है। सो गाइस, शिवम्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे टू शिवम्स लोन अकाउंट। टू शिवम्स लोन अकाउंट 2,07,900। कहा जाएगा ये? बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। शिवम्स लोन 2,07,900। ठीक है। नाउ गाइस, बचे हुए दो पार्टनर्स जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उनका लेजर क्लोज करेंगे। एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेबिट बैलेंस आएगा पैसे मंगा लेंगे, क्रेडिट बैलेंस आएगा पैसे दे देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले सुंदरम की बात करूंगा। डेबिट साइड बढ़ा है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड का टोटल 1,92,000 और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है दोस्तों, शॉर्टफॉल हो रहा है। इसका मतलब लेजर में डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्या करेंगे? पैसे मंगा लेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सुंदरम का? 20,200 रुपया। ठीक है। डेबिट साइड का टोटल 1,92,000, क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा, शॉर्टफॉल आ जाएगा 20,200। व्हाट अबाउट सत्यम? 18,000 प्लस 1,20,000, डेबिट साइड का टोटल 1,38,000 ना, क्रेडिट साइड बढ़ा है। सो गाइस लिख देंगे क्रेडिट साइड में 1,95,000 प्लस 20,000 प्लस 9,900, 2,24,900। डेबिट साइड में भी लिख दूंगा और क्या करेंगे? दे देंगे। ठीक है। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर माइनस 18,000 माइनस 1,20,000, 86,900। तो दोस्तों, सुंदरम से पैसा आएगा, उसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है। तो सबसे पहले जो शिवम का पैसा था वो लोन में चला गया। शिवम कैपिटल 2,07,900 टू शिवम लोन 2,07,900। ठीक है। फिर अब जो सुंदरम से जो पैसा आएगा उसकी एंट्री क्या होगी? कितना पैसा आया सुंदरम से? 20,200। ठीक है। तो जर्नल एंट्री कर देंगे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल अकाउंट 20,200। एंड फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सत्यम को पे कर रहे हैं उसकी भी एंट्री कर देंगे। सत्यम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 86,900। ठीक है। ना, शिवम लोन बैलेंस शीट में जाना चाहिए था, चला गया। सत्यम को जो पैसा पे किया है वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, डाल दीजिएगा।
बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सत्यम कैपिटल अकाउंट 86,900 और दोस्तों सुंदरम से जो पैसे आए 20,200 वो डेबिट साइड में आ जाएंगे। तो सुंदरम कैपिटल 20,200। अब बैंक अकाउंट क्लोज कर देंगे आप, डेबिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड का टोटल 95,720 प्लस 20,200 1,15,920, इधर भी 1,15,920 माइनस 86,900, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29,020। कहा जाएगा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल दीजिएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में डाल दीजिएगा बैंक 29,020। क्लोज करें बैलेंस शीट 3 लाख प्लस 75,000 प्लस 2,07,900, लाइबिलिटी साइड का टोटल 582,900, असेट साइड का चेक कीजिएगा 3 लाख प्लस 1,44,000 प्लस 45,280 प्लस 64,600 प्लस 29,020, बैलेंस शीट टैली। मुझे बताना कितने लोगों का सही आया। दिस क्वेश्चन वाज गिवन एज होमवर्क, उसको मैंने फास्ट अभी आपको सॉल्व करके बता दिया है। कितने लोगों का सही आया मुझे बताएंगे, कितने लोगों की मिस्टेक हुई और कहां मिस्टेक हुई वो भी बताएंगे। सर जब गिवन होता है तभी लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नहीं तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो लोन में डालेंगे, कुछ भी अगर बोला हुआ नहीं है तो लोन में डालेंगे। अंशिका आप उल्टा कह रही हो, यू आर टेलिंग एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, पहली बात तो क्या करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा वो मैं करूंगा। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो एनी अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर or legal executor of deceased partner, it is to be transferred to their loan account. I hope I am very much clear about it. I hope you got this, Anshika. ठीक है, एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में एग्जीक्यूटर लोन, वही तो कहा है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, चलो होमवर्क डन। अब आ जाते हैं आज के दो क्वेश्चंस पर, देखते हैं दो हो पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले आ जाना दोस्तों, सबसे पहले आ जाना क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाउ 9th और 10th ये क्वेश्चन है रिटायरमेंट प्लस एडमिशन, मतलब एक गया और दूसरा आया। ठीक है, एक गया दूसरा आया। KL and M are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. Due to illness, L wanted to retire from the firm on 30th March 2020 and admit his son N in his place. तो KL और M पार्टनर्स है। L ड्यू टू इलनेस अपनी जगह अपने बेटे को, वो रिटायर होगा और अपने बेटे को एडमिट किया जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ओल्ड पार्टनर्स KLM, न्यू पार्टनर्स KMN। ठीक है, so balance sheet of old partners was capital account, reserve, trade payables, furniture, trade receivables, inventory in trade, cash and bank balance. On retirement of L, assets were revalued, furniture 10,000, inventory in trade 30,000, 50% of the amount due to L was paid off in cash and balance was returned in the firm as a capital of N. जितना भी L को देना है एज अ शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर 50% दे दिया जाएगा और बचा हुआ 50% N का कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। On admission of new partner, goodwill was valued at ₹50,000. Gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. Partners are being paid off their extra balances to make capital proportionate by keeping N's capital as a base. N के कैपिटल को बेस मानते हुए सबका कैपिटल उसी प्रकार रखेंगे एंड गाइस जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल होगा वो उनको पे कर देंगे। तो हमको करना क्या क्या है, जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट
और कैपिटल अकाउंट ऑफ दी पार्टनर्स। वर्किंग नोट में दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना होगा और गुडविल का एडजस्टमेंट भी करना होगा। आई होप यू गॉट दिस, आई होप यू गॉट दिस। ठीक, चलो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे, फिर क्वेश्चन एक बार और पढ़ने के लिए कहूंगा सभी लोगों को, तो कर लेंगे दोस्तों। जर्नल एक पेज का फॉर्मेट, जर्नल 1 पेज, फिर उसके बाद बैलेंस शीट 10 लाइन्स, फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद 4 कॉलम्स, 4 कॉलम होंगे KLMN। वर्किंग नोट में बन जाएंगे दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैंक अकाउंट, ठीक है। और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल फंडा है, जो आ रहा है वो गेनिंग पार्टनर है और जो जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग है, और शेयर उतना ही होगा जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर होगा, ठीक है। तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मेन फॉर्मेट में बनेगा जर्नल 1 पेज का, बैलेंस शीट 10 लाइन्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद 4 कॉलम्स KLMNN फॉर 10 लाइन्स, और दोस्तों वर्किंग नोट में बनेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर अराउंड 8 to 10 लाइन्स, एंड फ्रेंड्स बैंक अकाउंट फॉर अराउंड 6 to 8 लाइन्स। आई होप यू आर गेटिंग इट। फॉर्मेट बना लो, जिसने फॉर्मेट बना लिया है प्लीज रीड द क्वेश्चन, please read the question. This is the case of retirement cum admission. That means one partner is getting retired and in place of him the other one is getting admitted into the partnership firm, ठीक है। Ready with the format everyone? Ready everyone with the format? Are you guys ready? Chalo, great, let's begin. KLMNR partner sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2 due to illness. L wanted to return for the firm on 31st March 2020 and admit his son and in his place. Balance sheet of KLNM as on 31st March 2020 is as follows. Capital KLM 40,000, 60,000, 90,000. Total comes to 1,30,000 guys. क्या करेंगे इसका? Post it into the partners capital account on the credit side. Here is partners capital account. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 60,000 एंड 30,000, टोटल 1,30,000। रिजर्व जर्नल एंट्री, एक हिस्से के लिए कितना बन रहा है? द ओल्ड PSR was 5:3:2, that means 10. So for one हिस्सा it will be 5,000. Now कैसे शेयर करेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, 2K 25,000, 2L 15,000, 2M 10,000. Journal entry will be guys, reserves account debit 50,000, to K's capital account 25,000, to L's capital account 15,000, to M's capital account 10,000, being reserve transferred to partner's capital account, being reserve transferred to partner's capital account, and the same is to be posted into their ledgers. Partner's capital account में post कर देंगे guys by reserve. It will be K 25,000, L 15,000, M 10,000, और N तो नया पार्टनर है, देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका है ही नहीं तो क्यों दे भाई।
क्यों दे? ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 20,000। एनी एडजस्टमेंट इन ट्रेड पेबल्स? नो एनी एडजस्टमेंट। कोई एडजस्टमेंट मुझे तो नजर नहीं आ रहा, आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं, जब मुझे ही नहीं आ रहा तो आपको कैसे आएगा यार गाइस। ठीक है, ट्रेड पेबल्स 20,000, नो एडजस्टमेंट, पुट इट इन द बैलेंस शीट विद द सेम अमाउंट। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ट्रेड पेबल्स 20,000। फिर उसके बाद असेट साइड में पहुंच जाते हैं हम लोग। फर्नीचर 20,000, क्या करेंगे फर्नीचर का? फर्नीचर 10,000 वैल्यू करना है, 20,000 दिया है, 10,000 करना है, वैल्यू रिड्यूस करना है। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट 10,000 बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर मेड। being revaluation of furniture made। लेजर पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू फर्नीचर 10,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में फर्नीचर 10,000। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000। एनी एडजस्टमेंट? एनी एडजस्टमेंट? नो एनी एडजस्टमेंट, वैसे की वैसे ही रख देंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000। ट्रेड रिसीवेबल्स 50,000। चलो नेक्स्ट। उसके बाद इन्वेंट्री इन ट्रेड। ठीक है, इन्वेंट्री का क्या करना है? इन्वेंट्री इन ट्रेड को 30,000 पे वैल्यू करना है। दैट मीन्स 50,000 का वैल्यू था, 30,000 करना है, 20,000 से वैल्यू रिड्यूस करना है। एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इन्वेंट्री इन ट्रेड 20,000 बीइंग रिवैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इन ट्रेड मेड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेंट्री 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू इन्वेंट्री 20,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेंट्री इन ट्रेड 30,000। ठीक है, एंड देन कैश एंड बैंक बैलेंस। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग बैंक अकाउंट, लिख देंगे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक नहीं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000। चलो डन। On retirement, else assets were revalued. Furniture 10,000 done. Inventory in trade 30,000 done. 50% of the amount due to L was paid in cash. Okay. पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके अमाउंट आएगा कि एल को कितना देना है। ठीक। एंड बैलेंस वाज रिटेन इन द फर्म एज अ कैपिटल ऑफ एन। ओके। ऑन एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीज 50,000। ठीक है, हु इज गेनिंग? गेनिंग कौन है? एन। सेक्रीफाइसिंग कौन है? एल। क्या होगा? व्हाट विल बी द गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो? जो एल का शेयर था क्या था? इट वाज 3/10। सो फ्रेंड्स 50,000 इंटू 3/10 कितना होगा अमाउंट? इट विल बी 15,000। क्या होगी एंट्री? चेक एवरीवन, दिस इज इंपॉर्टेंट, this is important। n's capital account debit 15,000 to l's capital account 15,000। gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio।
लेजर पोस्टिंग कर देंगे एन के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एल्स कैपिटल 15,000 और एल के क्रेडिट में बाय एन 15,000। ठीक है, चलो अब दो चीजें बाकी है। सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस आएगा बांट देंगे। फिर उसके बाद जितना भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है उसमें आधा दे दिया जाएगा, और दोस्तों आधा जो होगा वो उसका कैपिटल ट्रीट होगा न्यू पार्टनर का। ठीक है, तो फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लोज रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, 30,000 का लॉस। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ये लॉस, ठीक है, 15,000, 9,000, 6,000, 15,000, 6,000, 9,000। ठीक है, लिख देंगे जर्नल एंट्री, या पहले रिवैल्यूएशन क्लोज कर देंगे, लिख देंगे बाय लॉस के 15,000, एल 9,000, एम 6,000, 30,000। सर के और एम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्या, वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्या बेटा, क्या के और एम सेक्रीफाइस कर रहे हैं? बाप ने अपना शेयर बेटे को दे दिया, कौन गेन कर रहा है, बेटा। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, बाप। के और एम ना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना ये गेन कर रहे हैं, उनका कोई रेशियो चेंज नहीं हुआ, जो उनका पुराना रेशियो था वही उनका नया रेशियो होगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, खुशी। ठीक है, जर्नल एंट्री गाइस, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नो, लॉस है। केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000, being net revaluation loss debited to partners capital account in the ratio of 5:3:2. Now next thing, अब निकाल लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दो ये लॉस, फिर निकालेंगे किसको कितना देना है। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, के कॉलम में 15,000, एल के कॉलम में 9,000 और एम के कॉलम में 6,000। अब क्या करेंगे, एल को कितना अमाउंट पे करना है वो निकालेंगे, जिसमें से आधा अमाउंट दे दिया जाएगा और आधा अमाउंट एन का कैपिटल ट्रीट होगा। तो सबसे पहले एल का अकाउंट क्लोज करेंगे गाइस। क्रेडिट साइड बड़ा है, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, इट विल बी 90,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में 90,000, डेबिट साइड में 9,000, बैलेंसिंग फिगर 81,000। 81,000 में आधा पे कर देंगे और आधा एन का कैपिटल होगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगी दोस्तों, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री। एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 81,000, और ये 81,000 उसको कैसे दिए जा रहे हैं, आधे टू बैंक अकाउंट 40,500 और बाकी आधे उसके बेटे का कैपिटल होगा, एंस कैपिटल 40,500। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर पोस्टिंग कर देंगे एल के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 40,500, इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आ जाएगा, बायल्स कैपिटल 40,500, और बचा हुआ आधा एन के कैपिटल में चला जाएगा 40,500, सेकेंड इफेक्ट एन के कैपिटल में भी आ जाएगा, बायल्स कैपिटल एन के कॉलम में 40,500। ठीक है, चलो समझ में आया सभी को। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्या करें, लास्ट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब क्या करना है, बेस पकड़ना है किसका,
partners are being paid of extra balances to make capital proportionate by keeping n's capital as base. n के कैपिटल को बेस पकड़कर आपको बाकी पार्टनर्स का कैपिटल फाइनल करना है। एंड गाइस जो भी उसके बाद डेबिट बैलेंस बचता है पैसे मंगा लो, क्रेडिट बैलेंस बचता है पैसे दे दो, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी नो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन। एन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 40,500 क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल 15,000 माइनस कर देंगे तो 25,500 आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले क्लोज करेंगे एन का कैपिटल टू बैलेंस कैरिड डाउन 25,500। ना सिंपल सा फंडा है, 25,500 उसका कैपिटल कितने शेयर के लिए? 3/10। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? 10/3। पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा? 25,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3, 85,000 हो जाएगा दोस्तों। 85,000 को इन रेशियो में बांट देना है, तो 85,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5, 42,500 के का कैपिटल होगा। एल तो रिटायर हो चुका है और एम का कैपिटल होगा 85,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 2, 17,000 रुपया। आई होप यू गॉट दिस, आई होप एवरीवन गॉट दिस। नाउ अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप क्लोज कर लो। अब ये क्लोजिंग बैलेंसेस तो आ गए, इसको सबसे पहले डाल दो बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डाल देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएंगे के 42,500, एम 17,000, एन 25,500, आउटर कॉलम 85,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के लिए बचे हैं, क्लोज कर दो। सबसे पहले एम का क्लोज करेंगे। कौन सा साइड बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है, 40,000, 40,000, ठीक है। 40,000 में से 23,000 चले गए, 17,000 क्रेडिट बैलेंस पे कर दो टू बैंक अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर 17,000। के की बात करेंगे, के की बात करेंगे तो 65,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल है 65,000 लिख देंगे, माइनस 42,500 माइनस 15,000, 7,500 के को दे देंगे। नाउ गाइस दी लास्ट जर्नल एंट्री, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 17,000, टू बैंक अकाउंट 24,500, being amount paid to M to make his capital proportionate, being amount paid to K and M, K and M to make his capital proportionate, ठीक है। बैंक अकाउंट में भी डाल देंगे गाइस लास्ट पोस्टिंग, बाय केस कैपिटल 7,000, बाय एम्स कैपिटल 17,000। कितना बैलेंस बचता है चेक कीजिएगा। डेबिट साइड का टोटल 80,000, क्रेडिट साइड में भी लिख दूंगा 80,000 और 80,000 माइनस 40,500 माइनस 7,500 माइनस 17,000 कम्स टू 15,000 लिख देंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 15,000, ठीक है। बैलेंस शीट में डाल देंगे फ्रेंड्स, बैंक बैलेंस 15,000। चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही क्या? लायबिलिटी साइड 85,000 प्लस 20,000, 1,05,000 और असेट साइड में
10,000 प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, 1,05,000। बैलेंस शीट टैलीड। डन विद द बैलेंस शीट गाइस। किसी को कोई शक इस क्वेश्चन में? किसी को कोई शक? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Anyone having any doubt, guys? चलो ग्रेट। कैपिटल वाला पॉइंट ये है कि जो भी एल को पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को, आधा उसको दे दिया जाएगा और बचा हुआ आधा जो है वो एन के कैपिटल को ट्रीट करेंगे। ठीक है। और फिर क्वेश्चन में एक सेंटेंस है कि एन का कैपिटल जो होगा उसको बेस पकड़ना है। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है। कैसे? चेक। अगर एन का कैपिटल 3/10 शेयर के लिए 25,500 है तो के का जो शेयर है 5/10, तो 5/10 के लिए कितना होगा? और एम का जो शेयर है 2/10 के लिए कितना होगा? तो फ्रेंड्स, अगर 3/10 के लिए 25,500 आ रहा है, मतलब पूरे फर्म का कैपिटल कितना हो जाएगा? पूरे फर्म का कैपिटल हो जाएगा दोस्तों 85,000। अब 85,000 को इस तीनों रेशियो में कर देना है। आई होप यू गॉट दिस। भूमि, समझ में आया क्या? नाउ इफ यू सी द कैपिटल अकाउंट, अब वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5, के का कितना शेयर था? 5, एम का 2/10 और इसका 3/10। के का 5/10 दिख रहा है, एम का 2/10 दिख रहा है, एन का 3/10 दिख रहा है। ठीक है ना। कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बचे? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11th, एंड क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, 4 क्वेश्चन बचे गाइस। आई थिंक वी शुड बी एबल टू कंप्लीट इट बाय फ्राइडे इटसेल्फ। फ्राइडे तक ही शायद हम लोग इसे कंप्लीट कर ले। इफ वी कंप्लीट अर्ली, maybe we can take change in profit sharing ratio on Saturday। ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर अब आरटीपी एमटीपी बैच के, सी यू टुडे एट 3:30 फॉर माय फर्स्ट सेशन इन द बैच। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे। 12:35 योर PYP RTP MTP starts on Wednesday। Thank you so much guys, have a great day everyone।